friends, this is the new topics of synthetic fibers and plastics. In previous class, we had studied about the plastics, types of plastic, their uses, advantages, disadvantages, etc. Okay. So today we will discuss about the types of plastics and their uses in detail. Okay. So there was two types of plastics as we discussed, that is thermoplastic and thermostatic plastics. Okay. Thermoplastics was classified into two parts, that is polythene and PVC. Okay, it is also the example of thermoplastic. So thermoplastics, polythenes. What is polythene? Polythene is made up of two words, that is poly and ethene. Okay, this is the example of thermoplastic. So polythene is prepared by the polymerizations of chemical substances, that is ethane. Okay, we already discussed about polymerization, polymer, monomers, all about that. Okay, so what is the use of polythene? Generally we used to make bag. Okay, we used to make plastic bags for two polythenes. Okay, so polythene is used to make plastic bag. Next है ये plastic bag है carry bag. Okay, next is PVC. PVC is the full form of PVC is polyvinyl chloride. Okay, polyvinyl means poly means many, vinyl chloride is a chemical substance. Okay, so it is prepared by the polymerization of vinyl chloride. Okay, this is known as PVC. Now let's see what are the uses of PVC. PVC का use क्या क्या है? तो PVC is used to make bottles. जिस bottles में लोग पानी पीते हैं, ठीक है? That bottles is made up of PVC. ठीक है? Next है non food packaging. Okay, food को packaging करने का जो भी elements होता है, जो भी वो food package जो करते हैं हम लोग, wrapper जो होता है chocolates का, toffee का, that is all made up of by PVC. Okay, next is bank cards. Due to its flexible natures, okay, the nature of PVC यानी कि the properties of PVC is flexible. Due to its flexible nature, PVC is used to make bank cards, that is credit, debits, that all cards are made up of the PVC type of plastic. Okay, so and the other main uses of PVC is to make insulation of wire, insulated wire, that is known as insulated wire. Insulated wire means आप इलेक्ट्रिक वायर्स हमेशा देखते होंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक वायर्स पे जो कवर्ड होती है, जो प्लास्टिक के कवर्ड में चढ़ाई हुई होती है, दैट इज इंसुलेटेड वायर, वो भी पीवीसी की बनी होती है, ठीक है? वो भी पीवीसी प्लास्टिक होती है। और वो जितने भी केबल वायर्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, सभी पे ये इंसुलेटेड प्लास्टिक का कवर होता है, ठीक है? और ये पीवीसी का बना होता है। ओके, सो कितने यूज हो गए? इट इज यूज्ड टू मेक बोटल्स, it is used to non-food packaging, it is used to make bank cards, and it is used to make cable insulators या cable insulation, insulated cables, wire या insulated electric wires कह सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका thermostatic plastic. So what was thermostatic plastic? Thermostatic plastic was a type of plastic which does not mold is on heatings. ठीक है, उसको मेल्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होता है, वो हीट रेसिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट होता है, ठीक है? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स. ओके, इसको मेल्ट करने पे ये बेंट भी नहीं होता, ठीक है? तो बैकेलाइट्स एंड मेलामाइन वाज द टू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? Thermostatic plastic. So let's talk about bakelite. Bakelites generally used in construction of electric switches, okay, and handle of utensils. ठीक है, तो bakelite का यूज हमेशा हम इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में करते हैं, और दूसरा हैंडल ऑफ अटेंसिल्स. तो इलेक्ट्रिक स्विचेस हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि एज द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, इट इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट एंड हीट रेसिस्टेंट. स्विच जो है, जितने भी स्विच घर में लगे होते हैं, ये बैकेलाइट के बने होते हैं. तो स्विच को अगर हम टच भी नेकेड हैंड में टच कर दें तो उसमें करंट नहीं आता, नहीं, उसमें हीट होता है, ठीक है? दैट्स व्हाई
बैकेलाइट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में। नेक्स्ट है आपको हैंडल ऑफ अटेंसिल्स। तो अटेंसिल जितने भी बर्तन, किचन वेयर में जितने भी अटेंसिल्स है, जितने भी बर्तन है, ठीक है, उसके हैंडल जनरली बने होते हैं बैकेलाइट के। ठीक है, बैकेलाइट के क्यों बने होते हैं? ताकि वो हीट रेसिस्टेंट होते हैं। अगर कुकर का आप हैंडल अक्सर देखोगे दैट इज मेड अप ऑफ बैकेलाइट। ठीक है, तो बैकेलाइट का वो कुकर का हैंडल बना होता है क्योंकि वो हीट रेसिस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग चूल्हे से गर्म कुकर भी हैंडल के थ्रू उतार लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो हीट रेसिस्टेंट होता है, वो गर्म नहीं होता। नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन वाज द सेकंड मेन एग्जांपल ऑफ थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। तो मेलामाइन टाइप ऑफ प्लास्टिक किस चीज में यूज होता है? तो जनरली इट इज यूज्ड इन फ्लोर टाइल्स। ठीक है, फ्लोर्स का टाइल्स बनाने में यूज करते हैं मेलामाइन का। किचन में बहुत सारे क्रॉकरीज बनाते हैं, जैसे कि आप लोग ओवन में, माइक्रोवेव में बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तन भी यूज करते हैं। दैट प्लास्टिक क्रॉकरी वाज मेड अप ऑफ बाय मेलामाइन। ओके, तो मेलामाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है मेलामाइन क्रॉकरीज की? कि ये कोल्ड और हॉट लिक्विड्स को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है बहुत देर तक। ठीक है, और ये अनब्रेकेबल क्रॉकरी होता है, ये टूटता नहीं है, बहुत आसानी से नहीं टूटता ये। ठीक है, वन वेरी अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दैट इज टेफ्लॉन। ओके, टेफ्लॉन भी एक अदर टाइप का प्लास्टिक है जो कि जनरली नॉन स्टिक्स की भी जो क्रॉकरीज होती है, नॉन स्टिकी जो क्रॉकरी, उस नॉन स्टिकी का जो पे जो कोटेड होता है ना, दैट कोटेड इज टेफ्लॉन। वो कोटेड टेफ्लॉन का होता है। ठीक है, टेफ्लॉन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। ओके, टेफ्लॉन का केमिकल्स नेम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कोटिंग नॉन स्टिकी क्रॉकरी। ओके, so now let's solve some questions about types of plastics. That is, why bucket are made of plastic? Why? तो बकेट जनरली हम लोग बाल्टी देखते हैं आजकल की, पहले की बकेट जो होती थी वो मेटल्स की बनी होती थी, अदर स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम्स। आपकी जो बकेट होती है वो प्लास्टिक की होती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की बकेट एक्चुअली प्लास्टिक बकेट buckets are made up of plastic these days because plastic is easily available। सबसे पहला रीजन। सेकेंड रीजन, प्लास्टिक इज लाइट इन वेट। ठीक है, और प्लास्टिक डज नॉट अकर रस्ट। ओके, प्लास्टिक में रस्ट नहीं होता, रस्ट नहीं लगता इसमें। ठीक है, तो तीन इसके रीजंस काफी है। ठीक है, व्हाई बकेट्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक दिस डेज। तो पहला क्या हो जाएगा? इट इज इजीली अवेलेबल, इट इज लाइट इन वेट एंड इट इज रस्ट रेसिस्टेंट। ओके, रस्ट रेसिस्टेंट कह सकते हैं इसको, मतलब कि इसमें वो कोरोजन्स या इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैकेलाइट प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। वायर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया बैकेलाइट स्विचेस, बैकेलाइट प्लास्टिक से इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बैकेलाइट प्लास्टिक जो होता है वो हीट रेसिस्टेंट और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट होता है, और when a person touch that switches by naked hands, it they does not get shock, they does not get electric shock. That's why we use backlights to make electric switches. Okay, नेक्स्ट आपका मेलामाइन इज यूज्ड टू मेक क्रॉकरी। वायर। अब देखिए मेलामाइन क्रॉकरी बनाने में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इसका रीजन है कि ये अनब्रेकेबल होता है। ठीक है, बिकॉज मेलामाइन इज यूज्ड टू मेक क्रॉकरी बिकॉज इट इज अनब्रेकेबल। ओके, इट इज फायर रेसिस्टेंट, इट इज हीट रेसिस्टेंट। ठीक है, तीन रीजन काफी है। ये फायर रेसिस्टेंट होता है, हीट रेसिस्टेंट होता है और अनब्रेकेबल होता है, इसलिए हम लोग मेलामाइन यूज करते हैं क्रॉकरी बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोतल। वायर। ठीक है, तो प्लास्टिक बोतल्स में आप देखते होंगे बहुत सारे हम लोग केमिकल स्टोर करके रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक बोतल्स जो है वो केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं होता। तो प्लास्टिक बोतल्स कांट रिएक्ट विद, डज नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स, दैट्स व्हाई वी कैन स्टोर केमिकल्स इन प्लास्टिक बोतल्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको घर में भी ट्राई करेंगे खुद से। नेक्स्ट है आपका सम स्पेशल यूजेस ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जितना यूज मैंने बताया, इसके अलावा कुछ और भी यूजेस हैं। तो बेसिकली प्लास्टिक का सबसे बड़ा यूजेस, सबसे ज्यादा यूजेस होता है आपको मेडिकल फील्ड में। ओके, मेडिकल
मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, जैसे टैबलेट का पैकेट जो होता है, टैबलेट जिस रैपर में पैक्ड होता है वो रैपर भी प्लास्टिक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट सिरिंजेस, जो इंजेक्शन जिस सिरिंजेस में बना होता है, ठीक है, वो भी प्लास्टिक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर्स ग्लव, डॉक्टर्स जो ग्लव्स पहनकर ट्रीट करते हैं पेशेंट को, वो ग्लव्स भी प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट थ्रेड फॉर स्टिचिंग वॉन्ड, कहीं भी आपको कट जाता है या घाव हो जाते हैं, घाव को जो स्टिच करते हैं हम लोग, तो वो जो स्टिच करने का जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, वो भी प्लास्टिक का होता है, ठीक है, प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट इज कुकवेयर यूज्ड टू मेक माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। अब बहुत सारे हम लोग बर्तन भी बनाते हैं प्लास्टिक का, जो कि माइक्रोवेव में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन स्टिकी कोटिंग्स, आपने अभी पढ़ा टेफ्लॉन के बारे में। नॉन स्टिकी जितने भी क्रॉकरी होते हैं उसको कोटेड करने में ये वो भी प्लास्टिक का ही होता है, दैट इज टेफ्लॉन, ओके। नेक्स्ट है आपका फायर रेसिस्टेंट ड्रेस। अब क्या होता है कि बहुत सारे फायर पर्सन को आप देखते होंगे, ठीक है, उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो फायर रेसिस्टेंट होता है, ठीक है, आग ना लगने वाले रेसिस्टेंट, मतलब आग ना लगने वाली ड्रेस बनाई जाती है उनको, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो भी जो फायर रेसिस्टेंट ड्रेस वो उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है, जो फायर रेसिस्टेंट ड्रेस जो बनाई जाती है वो भी प्लास्टिक की ही होती है, ठीक है, दैट इज थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, ओके। तो आई होप कि आपको यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स डिटेल में समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको किसी भी यूजेस में कहीं भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। Your next topic is plastic and the environment. तो प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, तो अक्सर ऐसा हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, इट मे हार्म इन आवर एनवायरनमेंट, ओके। इट इज थ्रेट टू एनवायरनमेंट, ठीक है, ये एनवायरनमेंट को हमेशा डरा सकता है, ठीक है। तो क्या क्यों ऐसा होता है, ठीक है, बिकॉज प्लास्टिक क्या है कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, प्लास्टिक जो है गलता नहीं है, सड़ता नहीं है जल्दी, ठीक है, ये डिकम्पोज नहीं होता बाय द नेचुरल प्रोसेस, बाय द नेचुरल एक्शन, बाय द नेचुरल बैक्टीरिया, ठीक है, इन सबसे ये डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। प्लास्टिक को हम इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक्स को प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट्स में हम लिखेंगे कि प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट्स बिकॉज इट डज नॉट गेट डिकम्पोज्ड इजीली बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, ओके। सो बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ओके। तो देखिए जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस की यहाँ पे बात आती है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल में उस सब्सटेंस को रखा जाता है जो कि जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, ओके, जो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल एक्शंस, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंसेस, फैब्रिक्स या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि नेचुरल एक्शन के थ्रू ये क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बायोडिग्रेडेबल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट्स को और डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक बची हुई है उसको भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सो प्लीज हैव अ लुक दिस टॉपिक। अगर आज की टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।